لگتا ہے این ڈی ایم اے کو ختم کرنا پڑے گا. کیوں نہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں. کورونا از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس. چیف جسٹس نے کہا لگتا ہے عدالت کے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی. شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نقد ادائیگی اس کمپنی کو کی گئی جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. جعلی لائسنسز والے پائلٹس کے خلاف کارروائی فوری مکمل کی جائے. جعلی لائسنس بنانے والے افسروں پر فوجداری مقدمات چلائے جائیں. سپریم کورٹ کا حکم. سول ایویشن اور پی آئی اے کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار. سی ای او پی آئی اے نے کہا کہ وہ پائلٹس کو معطل کر سکتے ہیں. برطرفی سول ایویشن کا اختیار ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا روز ویلٹ ہوٹل سمیت کوئی اثاثہ بغیر اجازت بیچا نہیں جا سکتا. جعلی ادویات بنانے اور بیچنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. چیف جسٹس گلزار احمد چیئرمین ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پر برہم. رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. چیئرمین ڈریب سے کہا آپ اپنا کام کر ہی نہیں رہے. نان رجسٹرڈ ادویات کی درآمد کی اجازت کیسے دی؟ عدالت کا پنجاب حکومت کو بجٹ میں گاڑیوں کے لیے مختص فنڈز استعمال کرنے سے روکنے کا بھی حکم. سرکاری کمپنیز کے پاس موجود گاڑیوں کی تفصیلات طلب. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے برطانیہ میں کرونا کی دوسری ممکنہ لہر کی صورت میں لاک ڈاؤن کے امکان کو رد کر دیا. کہتے ہیں برطانوی معیشت دباؤ کا شکار ہے. مستقبل میں لاک ڈاؤن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. برطانیہ بھر میں 24 جولائی سے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں نے حکومتی فیصلے کی تائید کر دی. دوسری لہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے شہری ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل کرائیں. اوورسیز پاکستانیوں کا اظہار خیال. برطانیہ میں ڈپریشن اور ذہنی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے این ایچ ایس پر بوجھ بڑھنے لگا. وبا سے صحت یاب ہونے والے افراد بھی نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. تازہ ترین برطانوی تحقیق میں انکشاف. سترہ مارچ کے بعد برطانوی کابینہ کا پہلا براہ راست اجلاس. برطانوی وزیر اعظم اور اہم وزراء کی بیٹھک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے واقع دفتر خارجہ میں ہوئی. کسی نے ماسک پہنا اور نہ ہی سماجی فاصلے کی پابندی کا خیال رکھا گیا. پی آئی اے کی پروازوں کی بندش پر اوورسیز پاکستانی حکومت پر برس اٹھے. بارسلونا میں رہنے والے پاکستانی مشکلات کا شکار فیملیز کے ساتھ پاکستان جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کی حکومت سے پروازیں بحال کرنے کی اپیل. روس میں تعینات پاکستانی سفیر شفقت علی خان کی روسی فیڈریشن کے نائب وزیر خارجہ مورگولوف سے ملاقات. سفارتی اسناد پیش کی. باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ نے ریپبلک چچنیا کے سربراہ رمضان کادرویف کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا. چیچن سربراہ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام. رمضان کادرویف کی اہلیہ اور صاحبزادی بھی لسٹ میں شامل. ملیشیا میں پاکستانی آم نے اپنے ذائقے اور خوشبو سے دھوم مچا دی. پاکستانی بزنس کونسل کے زیر انتظام کوالالمپور کے معروف تجارتی مرکز میں پاکستانی آموں کا میلہ. افتتاح پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کیا. مقامی شہریوں نے پاکستانی آموں کا خوب لطف اٹھایا. اور سکینڈل کوئین کی عمر کا بالآخر پتہ چل ہی گیا. اداکارہ میرا 42 برس کی نکلی. میرا نے مالی امداد کے لیے لاہور آرٹس کونسل میں درخواست جمع کرا دی. میرا نے ڈی ایچ اے میں ذاتی گھر اور 7 افراد زیر کفالت ظاہر کیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ تارڑ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں رافع آوان۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان NDMA سول ایویشن اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پر خاصے برہم نظر آئے۔ جعلی لائسنس بنانے والے افسران پر فوجداری مقدمات چلانے کا حکم بھی دیا۔ کابینہ نے PTV فیس 100 روپے کرنے کا معاملہ فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ ادھر حیدرآباد پولیس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان سب خبروں کی تفصیل بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر سائنس کی سائنس فیل ہو گئی۔ فواد چودھری کی پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی ہے۔ ملک میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین ریت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عید الاضحیٰ 1 اگست بروز ہفتہ ہوگی۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع برآلود تھا یا غبار آلود۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے تمام مراکز سے بھی عدم رؤیت کی رپورٹ دی گئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذو الحجہ 1441 ہجری جمعرات 23 جولائی کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہفتہ 1 اگست کو ہوگی۔ لگتا ہے NDMA کو ختم کرنا پڑے گا، کیوں نہ چیئرمین NDMA کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں۔ کورونا از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے عدالت کے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی۔ شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نقد ادائیگی اس کمپنی کو کی گئی جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے ڈراپ حکام پر بھی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ بڑی عدالت میں بڑا کیس۔ کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا NDMA حکام پر اظہار برہمی۔ منصف اعلیٰ نے کہا کہ لگتا ہے NDMA کو ختم کرنا پڑے گا، کیوں نہ چیئرمین NDMA کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں۔ سماعت شروع ہوئی تو مشینری امپورٹ کی اجازت، ویکسین اور ادویات کی امپورٹ، جہاز چارٹرڈ کرنے اور اس کی ادائیگیوں کی تفصیلات سے متعلق NDMA کے نامکمل جواب پر عدالت برہم ہو گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ چیئرمین NDMA وضاحت کرنے میں ناکام رہے۔ لگتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ بہت ہوشیاری اور چالاکی کی ہے، شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نقد ادائیگی اس کمپنی کو کی گئی جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، صرف زبانی نہیں دستاویزات سے شفافیت دکھانا پڑے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ کورونا، سیلاب، ٹڈی دل اور سب کچھ NDMA کو سونپا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا اربوں روپے کیسے خرچ ہوئے، NDMA کے ممبر ایڈمن کو خود کچھ معلوم نہیں۔ چیف جسٹس نے ڈراپ حکام پر ناراضگی کا اظہار کیا، ریمارکس دیے کہ ڈراپ نے نان رجسٹرڈ ادویات کی درآمد کی اجازت کیسے دی؟ ڈراپ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی بھی دوا نہیں آ سکتی۔ ڈراپ کی ناک کے نیچے جعلی ادویات مل رہی ہیں۔ جعلی دوائیں بنانے اور بیچنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری صحت کو ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس اعجاز نے ریمارکس میں کہا ہے کہ صاف پانی کمپنی پر 4 ارب روپے خرچ ہوئے، صاف پانی تو ملا نہیں، اربوں روپے کی لگژری گاڑیاں خریدی گئی۔ عدالت نے حکم دے کر گاڑیاں حکومت کو واپس کرائیں۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو بجٹ میں گاڑیوں کے لیے مختص فنڈ استعمال کرنے سے روکتے ہوئے سرکاری کمپنیوں کے پاس موجود گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ عدالت نے سندھ اور بلوچستان حکومت کو بھی 2 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے جعلی لائسنس والے پائلٹس کے خلاف کارروائی فوری مکمل کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ جعلی لائسنس بنانے والے افسران پر فوجداری مقدمات چلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے سول ایویشن اور PIA کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا روزویلٹ ہوٹل سمیت کوئی اثاثہ بغیر اجازت بیچا نہیں جا سکتا۔
सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत CEO PIA अरशद मलिक ने अदालत को आगाह किया वो पायलट्स को सिर्फ मुअत्तल कर सकते हैं। बरतरफी सिविल एविएशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने DG सिविल एविएशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस ओहदे के अहल नहीं, CAA चलाना आपके बस की बात नहीं। पायलट को लाइसेंस देते वक्त CAA के तमाम कंप्यूटर्स बंद हो गए। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि लोग कहते हैं दुनिया की कौमों में हम करप्ट तरीन मुल्क हैं, हम बदनामी की किस नहज तक जाएंगे। मजीद बदनामी की गुंजाइश नहीं। आपने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। आपकी रिपोर्ट में सिवाय आपकी नाअहलियों के कुछ भी नहीं। क्या लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए? मुअत्तल होने वाले भी तनख्वाहें ले रहे हैं। शर्म का मकाम है। तमाम एयरपोर्ट्स पर करप्ट लोगों का राज है। समाअत के दौरान रूजवेल्ट होटल का भी तस्करा हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि रूजवेल्ट होटल समेत PIA का कोई असासा अदालत की इजाजत के बगैर फरोख्त नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि गुलशन जिन्ना में PIA प्लॉट पर आज भी शादी हॉल बना हुआ है। हॉल न गिराने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत ने सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। इंसदाद कोरोना और टिड्डी दल पर भी ब्रीफिंग दी गई। भारतीय मसालिम के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा भी किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश हर खतरे का मौसर जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ का अज़्म। DG ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क के दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार ने तमाम फॉर्मेशंस की तैयारियों को सराहा। इजलास में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहते हुए मजलूम कश्मीरियों की हिम्मत और सब्र इस्तिकलाल पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इंसदाद कोरोना वायरस मुहिम और इंसदाद टिड्डी दल मुहिम पर भी गुफ्तो शुनीद की। कोरोना वबा के दौरान पाक फौज के किरदार की तारीफ की गई और टिड्डी दल से निमटने के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के दौरान ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वबा के खिलाफ कामयाबियों को एहतियात से ही बरकरार रखा जा सकता है। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में डिप्रेशन और स्ट्रेस में इजाफे की वजह से NHS पर इजाफी बोझ बढ़ने लगा है। बरतानवी तहकीक में ये बात सामने आई है कि इस वबा से सेहतियाब होने वाले अफराद भी नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन रवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में नफ्सियाती अमराज के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस की वजह से ज़हनी अमराज की शरह में इजाफा हो रहा है। इस मर्ज से सेहतयाब हो जाने वाले तवील अरसे तक मुख्तलिफ ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का शिकार रह सकते हैं। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाला हर 3 में से एक शख्स पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जबकि ज़हनी मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तहकीक में बरतानिया की एक तंजीम कोविड ट्रामा रिस्पॉन्स वर्किंग ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब ज़हनी अमराज का शिकार होने वाले ग्रुप में 5वां ग्रुप होंगे। बरतानिया में बहुत से पहले से ये अमराज मौजूद हैं और जिनमें ये अलामात ज़हनी अमराज की थी, नफ्सियाती अमराज की थी, वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आम तौर पे अवाम जो है वो बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेस, अनहोना खौफ, परेशानी, गैर यकीनी कैफियत, इन चीज़ों ने इंसान पे बहुत बुरे असरात डाले हैं। तो बहरे नफ्सियात को सामने आना चाहिए और इनके मसाइल हल के लिए उन्हें आगे आगे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो
ان چیزوں کو انکریج کریں تاکہ لوگ اس اسٹریس سے نکلیں۔ ماہر نفسیات کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا صحت یاب مریضوں کے علاوہ جو 4 گروپ ذہنی امراض سے متاثر ہوں گے، ان میں طبی عملہ، وہ افراد جنہوں نے اس مرض کے ہاتھوں اپنے پیاروں کو کھو دیا، وہ جو پہلے سے دماغی مسائل کا شکار تھے، اور وہ جو آئسولیشن میں رہتے ہوئے مختلف مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وائرس نے تو تعصب نہیں کیا، اس نے سب پر ہی حملہ کیا، مگر کیونکہ یہ فرق جو تھا، یہ تفرقہ جو تھا، یہ پہلے ہی تعصب پر بنیاد تھی اس کی، یہ زور و شور سے جاری و ساری ہے بلیک اور ایتھنک مائنورٹیز میں، اور اس کے لیے حکومت کو اب کچھ اقدامات فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کے 3 اہم حصوں کو مضبوط بنائیں۔ اب وہ 3 حصے کون سے ہیں میری نظر میں؟ آپ کی روحانی سوچ، آپ کی ذاتی سوچ اور آپ کی تعلقی سوچ۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ کا ایمان پختہ ہے خدا پہ، جب تک آپ صحیح راستے پہ رہتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تحقیق کے مطابق ذہنی امراض کا سامنا کورونا وائرس کے تمام مریضوں کو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس کا شکار افراد کی تعداد ابھی کم ہو رہی ہے، تاہم ذہنی امراض کی شرح میں ابھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا وائرس سے صحت یاب تقریباً 15% افراد کم از کم 1 سال تک ذہنی امراض کا شکار رہیں گے۔ برطانیہ بھر میں 24 جولائی سے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو برطانیہ میں مقیم پاکستانی کس نظر سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے حالیہ پریس بریفنگ میں اس فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ 24 جولائی سے برطانیہ بھر میں عوامی رابطوں اور سیر و سیاحت سمیت کاروباری مراکز کے تمام مقامات پر ماسک پہن کر جانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری ممکنہ لہر کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ کورونا وائرس پر تحقیقاتی کام کرنے والے برطانوی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ گورنمنٹ نیا رول انٹروڈیوس کر رہی ہے کہ 24 جولائی سے جو سب کو ماسک پہننے چاہیے جو بھی کسی شاپ میں جائے یا شاپنگ سینٹر میں، تو یہ بہت اچھا اقتدام ہے، ہم سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، کیونکہ ایسا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ کورونا میں پھیلاؤ کی کمی آئے گی۔ حکومت اس وقت تو جو کر رہی ہے ہمارے لوگوں کے لیے ہی کر رہی ہے، اوبیسلی جتنی بھی یہاں کی پاپولیشن ہے وہ ان کی بہتری کے لیے کر رہی ہے۔ برطانوی حکومت نے مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کی صورتحال کو بہتر بنانے اور آسانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ لوگ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھیں اور عوامی رابطوں سمیت تمام خرید و فروخت اور دفاتر میں لوگ ماسک کو لازمی پہنیں، جس پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے حکومت نے جرمانے کی رقم 100 پاؤنڈ تک رکھی ہے۔ اس حوالے سے مقامی برطانوی باشندوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسے فیصلے لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ پبلک سیفٹی کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ، کیونکہ ہمارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، خاص کر جو ہماری ایشین کمیونٹی، جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر پورا عمل نہیں کرتے۔ اب اگر 24 کے بعد ہوا ہے تو یہ عوام کو فائن بھی ہوں گے جو یوز نہیں کریں گے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہیلتھ کے لحاظ سے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا نا۔ گورنمنٹ نے 24 کے بعد جو ہے شاپنگ سینٹر میں، ہاسپٹلز میں اور تمام جتنے بھی پبلک پارک ہیں وہاں پہ ماسک کو لازمی قرار دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا انتہائی آسن قدم ہے۔ حکومت کے ماسک پہننے کے فیصلے کو برطانوی پاکستانیوں نے بے حد سراہا ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ لاک ڈاؤن کی سخت ہدایت کے باوجود لوگوں میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے ایسے فیصلے بہترین اقدامات ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کرتے ہوئے انسانی جانوں کو بچانا اور وبا کی روک تھام کرنا ہے۔ 24 جولائی سے ماسک پہننے کی شرط کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومتی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے بیان کے بعد پی آئی اے کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ پی آئی اے کی پروازیں بند ہونے سے اوورسیز پاکستانی کو نہ صرف وطن آنے میں دقت کا سامنا ہے بلکہ پاکستانیوں کی میتیں وطن بھجوانا بھی ممکن نہیں رہا۔ بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔
जो ये सरवर साहब जो वज़ीर हैं हवाबाजी के, उनके जो पायलट के बारे में जाली लाइसेंस के बारे में बयान आया है, उससे हमारी जितने भी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसका मोराल डाउन हुआ है। यहाँ पे हमें PIA की बंदिश से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे हम वतन हैं जो अपने मुल्क में PIA के ज़रिए जाना चाहते हैं। वज़ीर मसरूफ़ ने बयान देकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि उनके एक बयान की वजह से एक तो PIA बंद हो गई है। हम जितने भी बरूने मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं उनके एक बयान की वजह से। अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे बयान देने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि क्योंकि ऐसे बयानात से पाकिस्तान के सब अदारों की बदनामी होती है। PIA के हवाले से जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर हवाबाजी जो है थोड़ी सी मेच्योरिटी से काम लेते, तो अगर कुछ काम गलत हो भी रहा था तो उसको ठीक करने का भी एक तरीका है, उसको बताने का भी एक तरीका है। लेकिन जिस तरीके से असम्बली के अंदर और प्रेस के अंदर पायलटों के बारे में और अमले के बारे में बात की गई, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हवाई कंपनी है उसका एक इमेज भी ख़राब हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब ने जो बयान दिया, उसकी वजह से पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में आ गए, क्योंकि उनके बयान की वजह से PIA फ़्लाइट यूरोप में आना बंद हो गई। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान की आज रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर ख़ारजा मोरगोल्फ से वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर ख़ारजा मोरगोल्फ ने सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली ख़ान का इस्तकबाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा को अपनी सफ़ारती इसनाद की नक़ूल पेश की। 1-on-1 मुलाकात में रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया, जबकि कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी एजेंडे के उमूर पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीका की वज़ारत ख़ारजा ने रूस की रिपब्लिक चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादेरों पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। कादेरों की बीवी और बड़ी बेटी को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। रूस के हुकाम ने अमरीका के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। रूस की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी की कमेटी बराए उमूर ख़ारजा के सरबराह लेवनत स्लोत्स्की ने कहा है कि अमरीका कादेरों को उनके फ़राइज़ सर अंजाम देने से नहीं रोक सकता। उनको ब्लैक लिस्ट फहरिस्त किए जाने का फ़ैसला बिल्कुल बेबुनियाद है। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम कोलालमपुर के मारूफ तिजारती मरकज़ में पाकिस्तानी आमों का मेला सजाया गया। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से कोलालमपुर के तिजारती मरकज में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहाँ पाकिस्तानी फलों के बादशाह आम, चौसा, सुंदरी, लंगड़ा, अनवर रटोल और दीगर अक़साम को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा कर रखा गया। मैंगो फेस्टिवल का पंडाल पाकिस्तान और मलेशिया के परचमों, रंगा रंग बरकी कुमकुमों और पाकिस्तान के मिली और सकाफती नगमों से गूंजता रहा। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक के बाद दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए माल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातू सरीन नज़ीर मिरासलाम और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ पाकिस्तानी मसनूआत को मकामी तिजारती मराकज़ में फ़रोग़ देने में मददगार साबित होती हैं, बल्कि मकामी शहरियों को पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत और रवायात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका भी मुहैया करती हैं। Although we should not be satisfied with that, because Malaysia is importing 53,000 metric ton per annum. Out of that, import from Pakistan is only 353 metric ton, which comes to only 0.65%. That means that if we want to get only 3% of the total share, we will have to at least import 1,500 metric ton. मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आम अपने मुनफरद रंग, जायके और खुशबू की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है। अपनी रंगत, अपनी लज्जत की वजह से दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, लेकिन इस चीज़ का हमें शिद्दत से एहसास था कि जितना अच्छा हमारा ये आम है उस लेवल पे ये मलेशिया में मार्केट हम नहीं कर पा रहे। तो जब से कमर्शियल काउंसिल साहब तशरीफ लाए तो हमने अपने जो एफर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया और हमने
मैंगो फेस्टिवल की शानदार तकरीब में शरीक मेहमानों को महकते ठंडे ठार, मीठे आम और लजीज मिल्क शेक पेश किए गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर शफकत अली खान न्याजी और दीगर अमायदीन समेत फेस्टिवल के शुरा ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी आमों की तारीफ की। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन यहाँ मलेशिया में शुरू हुआ तो हमें अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान से 2 फ़्लाइट्स महीने में आ रही थी। हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने पाकिस्तानी मैंगो को मलेशियन मार्केट में मुतारिफ़ कराया और अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। आज ये इस सिलसिले की तीसरी कड़ी थी आज का जो प्रमोशनल इवेंट था कि मलेशियंस जो हैं वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि और पाकिस्तानी मैंगो मंगवाया जाए। आपको लोगों के चेहरों से ही नज़र आ रहा होगा कि हर बंदा यहाँ पे खुश है, क्योंकि ये फेस्टिवल है और फेस्टिवल भी आम का, जो कि हमारे फलों का बादशाह है। तो आज आम हर तरफ आम आप टेस्ट कर सकते हैं, आम का आप जूस ले सकते हैं, आम का मिल्क शेक है, आम की आइसक्रीम है, एवरीथिंग मैंगो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। Alhamdulillah, thank you very much. Okay, we had, I think this is the third festival mango we are doing. First was in Subang Jaya, recently in Maidin, second also in Penang, in Maidin. Today we are doing in City 1. Alhamdulillah, it is very good. I think it's a king of fruits. It's so sweet, so nice. Everybody, every Malaysian who have a really even taste the mango. आज के फेस्टिवल की सबसे खसूसी और इनफरादियत ये है कि ये एक मिनी पाकिस्तान एरिया है। ये डाउनटाउन कोलालमपुर का एरिया है, सिटी 1 प्लाजा, जहाँ ट्रेडर्स और रेजिडेंट ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी आम जो हैं बहुत मीठे और एरोमेटिक हैं और हमने आज यहाँ पर जो है एक तकरीर की है सिटी 1 में, जहाँ पे सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि इतना इसको प्यार मिला है और यहाँ पे सब लोग हैं और पाकिस्तानी आम बहुत ही स्वीट और मज़े के हैं। Today we're having this amazing mango festival here in Kuala Lumpur and knowing that Pakistani mango is दुनिया की सबसे मीठा and juicy mango है। स्पेशली इस वक्त जब आप पाकिस्तान से दूर होते हैं, जहाँ पर आप पाकिस्तान की और चीज़ों को मिस करते हैं, आई थिंक ये फ्रूट का सीज़न और मैंगो आपको ना मिले तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती है। और आई थिंक हमें यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वाली नेमत आजकल अवेलेबल है और हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी मैंगो न सिर्फ खुद खाया जाना चाहिए बल्कि तोहफ़े तहफ़ की सूरत में मलेशियन अवाम को तोहफ़े में भी देना चाहिए ताकि वो भी पाकिस्तानी मैंगो के जायके से रोशनास हो सकें। Pakistani mango is very nice and it's really sweet, just like eating sugar. इस मेले में मलेशिया और पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात, अमायदीन, हाई कमीशन के आला ओहदेदार, PIA के कंट्री मैनेजर समेत फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को तोहफ़े भी पेश किए गए। जी, पाकिस्तानी आमों की महक और मिठास मलेशिया और पाकिस्तान की दोस्ती में मजीद चाशनी पैदा कर देगी। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। शहर कायद की मवेशी मंडी में हमेशा भारी भरकम खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हैं, लेकिन इस बार इस मंडी की एक और दिलचस्प बात यह है कि वहां आपको एक लड़की कुर्बानी के जानवर फरोख्त करते हुए नजर आ रही है। तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त यूं तो मर्द ही करते हैं, लेकिन अगर आप मवेशी मंडी के ब्लॉक नंबर 1 का रुख करें तो वहां आपको 21 साला आयशा गनी मर्दों के शाना बशाना अपने जानवर फरोख्त करती नजर आएंगी। आयशा, जो कि एक बाइकर भी है, कहती हैं जानवरों से मोहब्बत उन्हें मवेशी मंडी खींच लाई है। बताया कि पहली बार यहाँ जानवरों का स्टॉल लगाया है तो मुश्किलात तो पेश आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक स्ट्रगल के बाद आप बिजनेस कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज हो, आप जॉब से आगे बढ़ते हो। एक सही एज में आपने जॉब स्टार्ट कर दी है तो आप आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हो। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरे कदम पे आप सोचते हो कि यार मेरे पास अमाउंट अब रेडी हो गई है, अब मैं छोटी सी अमाउंट से भी बिजनेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आयशा ना सिर्फ मवेशी मंडी में जानवर फरोख्त कर रही हैं बल्कि मवेशियों का ऑनलाइन ऑर्डर भी लेती हैं। कहती हैं ख्वाहिश है कि दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बने। पहले हम लेडीज
कपड़ों के मामले में भाव ताव करते थे, अब जेंट्स भाव ताव कर रहे हैं कि हमें इतने में ही जानवर चाहिए, हमें यही जानवर पसंद आ गया है, बस हमें यही चाहिए, अब आप यही लेके जाएंगे, अब इतने में ही आपको देना है। और मैं बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोलते हैं लेडीज़ तो आगे से आगे बढ़ी हुई हैं, कपड़ों में तो कम करवा लेती हैं, जानवर में कम नहीं कर रही। आयशा गनी ने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि अब वो हर साल मवेशी मंडी में ये काम करेंगी। किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। कनाडा के शहर क्लैरनवाइल में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। अफसोसनाक हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या क्लैरनवाइल के इलाके में पेश आया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने हादसे की इत्तला मिलते ही बर वक्त कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर 2 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कनाडा में कोरोना वायरस के दौरान स्कूलों को दोबारा खोलने के हवाले से लोगों की राय शुमारी की गई, जिसमें वालिदैन की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बच्चों को हर वक्त मास्क पहनना लाजिम करार दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। कैनेडियन तलबा की अंजुमन ने स्कूलों में बच्चों की वापसी के हवाले से एक राय शुमारी का एहतमाम किया, जिसमें वालिदैन से बच्चों के स्कूलों में मास्क लगाने के बारे में पूछा गया। वालिदैन की 2/3 की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि घर से लेकर स्कूल बस में और स्कूल में हर जगह बच्चों को मास्क लगाना लाजिम करार दिया जाए। 21% वालिदैन का ये कहना था कि बच्चों को सिर्फ बस और खाने के वक्फे के दौरान ही मास्क लगाने का कहना चाहिए। 28% वालिदैन ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मास्क लगाना बच्चों के लिए इख्तियारी होना चाहिए। अगर बच्चे चाहे तो वो मास्क लगाएं, अगर वो नहीं चाहते तो मास्क लगाने पर जोर न दिया जाए। अंजुमन के नायब सदर का कहना था कि राय शुमारी के मुताबिक बहुत से वालिदैन बच्चों की सेहत के हवाले से परेशान भी हैं और 62% वालिदैन अभी अपने बच्चों को दोबारा स्कूलों में भेजने से भी डरते हैं। राय शुमारी के मुताबिक ओंटारियो में सबसे ज्यादा तादाद वालिदैन की ऐसी है जो बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं और क्यूबिक में वालिदैन बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए तैयार है और क्यूबिक ऐसा सूबा है जिसमें सबसे पहले स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। बरतानिया में लॉकडाउन के बाद खेलों के मैदान आबाद होना शुरू हो गए। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके एल्फर्ड में मीडिया क्रिकेट टीम और लायर्स क्रिकेट टीम के माबैन 3 मैचेस की सीरीज खेली गई। दिलचस्प मुकाबले के बाद मीडिया टीम ने सीरीज जीत ली। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के बायस 3 माह से ज़ायद अरसे तक लगे रहने वाले लॉकडाउन के सबब घरों में बंद अफराद को एक मस्बत तफरीह फराहम करने के लिए मीडिया टीम और लॉयर्स के दरमियान एक क्रिकेट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मीडिया की टीम ने वुकला की टीम को 2-1 से शिकस्त दे दी। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी आफ्ताब, राजा एजाज अहमद और चौधरी दिलपजीर ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां ना सिर्फ सेहत के हवाले से फ़ायदा मंद हैं बल्कि कम्युनिटी को लॉकडाउन के तवील दौरानिए के बाद ज़िंदगी की रौनकों की जानिब लाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। मुबारकबाद देता हूँ गैन साहब सबको और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, कम्युनिटी में गहमा गहमी होनी चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त गेम किया और जो कैप्टन साहब हैं मुर्ज़ाक यानी साहब और मुर्ज़ा शाह साहब, उनको बहुत मुबारक पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तो हमेशा कम्युनिटी को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको भी उनके साथ तावन करना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी एक्टिविटी थी ये। मैच के इख्तिताम पर मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बेहतरीन बॉलर का इनाम मुश्तबा अली शाह जबकि बैटिंग में बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड सलीम साबरी को दिया गया। जीतने वाली टीम के एजाज में कम्युनिटी रहनुमा राजा एजाज और PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी दिलपजीर की जानिब से अशाइये का एहतमाम भी किया गया। स्कैंडल क्वीन की उम्र का बिलाखिर पता चल ही गया। अदाकारा मीरा 42 बरस की निकली। मीरा ने माली इमदाद के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल में दरख्वास्त जमा करा दी है। चलो बहाना ही सही, लेकिन स्कैंडल क्वीन मीरा जी की उम्र का पता तो चला। जी हाँ, हर बार 21 की सालगिरह मनाने वाली मीरा जी की असल उम्र 42 बरस निकली। DH में जाती घर लेकिन अदाकारा इमदाद की मुस्तहिक। आर्ट्स काउंसिल में इमदाद के लिए दी जाने वाली दरखास्त में मीरा जी ने 5000 माहाना जारी करने की अपील कर दी। अदाकारा ने इमदादी फॉर्म में लिखा कि वो इन दिनों शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। 7 अफराद की कफालत भी उनके सर है, इसलिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल माली इमदाद करे। अलहमरा हर माह आर्टिस्ट सपोर्ट फंड से मुस्तहिक फनकारों को 5000 जारी करता है।
अभी आपने अदाकारा मीरा की उम्र और उनकी माली मुश्किलात पर रिपोर्ट देखी। मालदार मीरा आखिर क्यों कंगाल हो गई, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अदाकारा मीरा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी जाने बढ़ेंगे। जी मीरा जी, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपसे जानना ये चाहेंगे कि माली इमदाद के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात कोविड-19 की वजह से जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, उनका हल निकाला जाए। एप्लीकेशन दरख्वास्त मुझे देनी नहीं आती और ना ही मैंने जिंदगी में कभी कोई एप्लीकेशन उससे पहले कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं की। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है। मेरे कुछ ओवरसीज के इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं और जो मेरी पर्सनल सिचुएशन है। मैंने गवर्नर साहब को एप्लीकेशन लिखी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी डिटेल जो है वो एप्लीकेशन में। मेरा जो ओवरसीज का इशू है दुबई का स्पेशली, उनको टेक केयर किया जाए और एम्बेसी के थ्रू उन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। मुझ समेत बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे स्टेज के एक्टर, बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है और इसलिए मसाइल हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।